Every year, my team deals with 30,000 students who want to study abroad. And the number of students who want to study in Denmark has just been increasing every year. And right now, 25,000 international students go and study in Denmark every year. And this number has been increasing lately. The reason for that, it is probably because it is amongst the top 5 happiest countries in the world. But exactly इसका मतलब क्या है? होता क्या है top 5 happiest countries? क्यों? अब ये countries usually इतनी happy क्यों होती है? First probably work life balance की वजह से. Work life balance 37 hour का week होता है डेनमार्क में, which is amongst the lowest all across the world. But अगर salaries के बारे में बात करें, पैसों के बारे में बात करें, it is at par or in fact more than average Europe. तो पैसा आप ज्यादा कमा रहे हो, काम आप कम कर रहे हो. And that means अगर आपकी जॉब 4 बजे खत्म होने वाली है, मैक्स टू मैक्स 5 बजे आपका काम खत्म हो जाएगा. 5 बजे आप लैपटॉप ऐसे है, लैपटॉप बंद करोगे एंड घर जाओगे. उसका मतलब नहीं है 5:10 पे आपको कोई कॉल कर सकता है. नहीं, आपका टाइम हो गया खत्म काम के साथ, which is just crazy to even imagine in India. Second, cleanliness, safety, green environment, उन सब में टॉप करता है डेनमार्क यूजुअली. एंड एट द सेम टाइम उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफी ज्यादा हाई है. एंड पोल्यूशन वगैरह का तो सोचना भी नहीं है किसी भी तरीके का. नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, इनमें से किसी चीज के बारे में, इवन स्मोक, वो सब चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. थर्ड, इट इज अमंग्स द लीस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एक बारी 2022 में इनके साथ एक चीज बुरी हुई थी. दे बिकेम फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज, बट अदरवाइज दे हैव ऑलवेज बीन द लीस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड ओवरऑल वंस यू बिकम अ सिटीजन, आपके लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, पेरेंटल लीव्स है अगर आप फादर बनते हो, या मतलब मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल दोनों लीव्स है. तो ओवरऑल एक स्ट्रेस फ्री लाइफ. एंड इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टडी इन डेनमार्क, वेयर शुड यू स्टडी, व्हाट शुड यू स्टडी, वेयर आर द जॉब्स एंड हाउ यू कैन यू बिकम द सिटीजन, everything. Firstly, let's talk about why Denmark over Germany and Netherlands. So if you're looking to study something which is innovative, then probably Denmark is the country for you. It is ranked second in Europe in terms of innovation. Also, every year 1,700 Indian students go abroad to study in Denmark. Out of these, there are 35-ish institutions in Denmark. So you won't see more than 100 students in your university that are Indian. So it is rarely in the entire university, not more than 100 students that are Indian. So it would be not easy to spot an Indian. I don't know if that's a pro for you or a con for you. If you want more international students studying with you, the most people that you'll be studying with would be Europeans who want to do something in innovation, and that is the kind of crowd that you would be ideally surrounded by. Now at the same time, when I compare it with a German and a Dutch classroom, ideally the class would be much more smaller. It is much more focused and much more practical as opposed to a German and a Dutch classroom. Now, when it comes to tuition fees, every year you'll be spending somewhere around 12,000 euros to 17,000 euros. That means 12 lakh to 17 lakh for your tuition fees. When I compare it to other countries, it is usually on the lower end. But when I compare it to European countries, it is at par with European countries. When I talk about scholarships, there are multiple of them, but also really competitive to get these scholarships. And the list of scholarships that you have to apply for include Danish government scholarship, Erasmus Plus scholarship, university specific options like DTU's merit-based scholarship, Aarhus University's master's scholarship, CBS scholarship for top international students. They're competitive, require a really good statement of purpose, but possible to get. Now there's something called Staten Udanstale Stenstone. ये word है. अब द थिंग इज, तुम लोग पढ़ने की कोशिश तो कर रहे होगे और तुम लोग शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे होगे, बट मैं ये वर्ड ऐसे रिमेम्बर करके बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे देख के बोल रहे हो, तो probably it might be easier for you. But what it basically means is जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन से आने वाले हैं, उनको फंडिंग मिलने वाली है डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट टू स्टडी. बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं मिलती. बट इससे ये भी मतलब निकलता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, दे हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, बिकॉज जो लोकल स्टूडेंट्स हैं एंड यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स. सो यू गेट अ बेटर चांस टू गेट स्कॉलरशिप्स, व्हिच इज पॉसिबल बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स, हैव आल्सो गॉट स्कॉलरशिप्स इन डेनमार्क यूनिवर्सिटी, एंड आई कैन मेक एन एंटायर वीडियो विद माय स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन डेनमार्क, provided this video gets enough likes and comments. मुझे बता देना comment section में if you think this is useful. Also, if you want to study in Denmark, you can get in touch with my team, and my team will help you step by step process, application, everything, and the link to that is in the description. अब next, let's talk about what are the universities that you should be applying. तो उसके लिए मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज भी हैं, एवरेज यूनिवर्सिटीज भी हैं, ताकि you have your safe options and you have your dream options also. Dream option हो गया तो बहुत अमेजिंग है, safe option कोई ना कोई आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. This is your list. First, University of Copenhagen में अप्लाई करना, this is your dream university. Second, Aarhus University में अप्लाई करना, and
टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क में अप्लाई करना। नाउ दीज आर योर वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा IBA कोल्डिंग में अप्लाई करना, VIA यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करना एंड आलबोर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। दीज आर योर रीच यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आई विल आल्सो गिव यू वन सेफ यूनिवर्सिटी जहां डेफिनेटली अप्लाई करना, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क, ओडेंसे एंड सोंडनबर्ग campus. Why am I recommending you this list? Because these are the places where my students have gone and also have got some sort of scholarships also. So do apply to these list of universities. Cost of living के बारे में मैंने अपने स्टूडेंट से बात की तो मुझे पता चला 900 से 1200 यूरोज का खर्चा हो रहा है उन लोगों का। 900 डिपेंडिंग अगर आपने बहुत खर्चे सस्ते में रह रहे हो एंड 1200 अगर ज्यादा तो 90,000 to 1,20,000। बट ओवरऑल आप पार्ट टाइम जॉब करके इससे ज्यादा कमा लेते हो। इसी पॉइंट में मिनिमम वेज के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिमम वेज इन द एंटायर कंट्री, बट स्टूडेंट से मैंने बात की तो मुझे पता चला 110 डेनिश क्रोना से 120 डेनिश क्रोना वो लोग हर घंटे कमा रहे हैं, अब विच इज समवेयर अराउंड 15 से 18 यूरोज हर घंटे कमाना। एंड हर हफ्ते आप 20 घंटे काम कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूं 15 यूरोज पे 20 घंटे काम करो, दैट इज 300 यूरोज एंड महीने का वो आपका 1200 यूरो हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक मिनिमम खर्चे 900 में रह रहे हो और 1200 कमा रहे हो तो एवरी मंथ यू वुड गेट टू सेव समवेयर अराउंड 300 यूरोज। एक बहुत ही बड़ी प्रो टिप, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब चाहिए तो प्रॉब्ली आपको कोपेनहेगन जाना चाहिए या आर्नस या फिर ओडेंसे। These are the 3 cities जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल सकती है। अदरवाइज डेनिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी इवन फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। Now I want to talk about the most important thing why international students are continuously choosing Denmark as a study abroad destination is because of the post study work visa. Because as soon as you graduate, इनका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 6 महीने का था, जैसे कि काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज का है जॉब सर्च वीजा उसको बोलते थे। देन दे मेड इट 2 years, जो कि यूके का था, अब वो 18 months हो गया, जो कि आयरलैंड का है। And now they have moved it to 3 years, which is the highest rate amongst the highest in European Union. So that also gives Denmark a really good edge. Ideally 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मींस कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, you barely say कि I don't need sponsorship and they still take you. But provided आपको लैंग्वेज आती होगी, if you are going for a communication oriented role, अगर communication oriented role नहीं हो, tech oriented role है, then डेनिश आने की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, provided वो बहुत ही ज्यादा डेटा ओरिएंटेड और टेक ओरिएंटेड है। बट अगेन थोड़ी सी डेनिश सीखना इज अ रियली गुड आइडिया। सो वंस यू गेट एडमिशन उसके बाद यू शुड स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज। ऑल्सो अभी कुछ लोग कमेंट्स में बोलना शुरू करेंगे कि 2 ही साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है या फिर 1 साल। बेसिकली आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है विदाउट इवन हैविंग अ जॉब 2 साल का, एंड देन इट इज एक्सटेंडेबल बाय 1 year, तो 3 साल का हो जाता है। दैट इज द एंटायर प्रोसेस। बहुत लोगों को नहीं पता है। नेक्स्ट अगर इंग्लिश के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा कंट्री कैन स्पीक इन इंग्लिश, और अगर आप बैचलर्स या फिर यंगस्टर्स के बारे में बात करोगे तो 90% प्लस चली जाती है। हाँ, प्रोवाइडेड सम रीजन्स है जो बहुत ही ज्यादा रूरल है जहाँ प्रॉब्ली आपका जाना नहीं होगा, वहां पे नहीं बोली जाती। बट कोपेनहेगन एंड ये जो टॉप सिटीज है वहां पे यू शुड बी फाइन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड गेटिंग योर entire day done in English also. I also want to give you a caveat कि मेरी एक और स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी, जिसने मुझे बोला कि उसका टोटल महीने का खर्चा 600 यूरोज का है, which is 60,000 rupees, and he ended up telling me कि वो मेजरली अपना सारा पैसा जो भी पार्ट टाइम काम करता है उसे बचा लेता है and is also funding his education. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये ट्रिकी लगा, so I just wanted to keep this towards the end of this video कि ऐसा भी हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। I can't guarantee this. This is something that the student told me in high confidence. And I do trust the student, but it's just that I'm pretty sure ये हर एक का सिनेरियो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक केस का सिनेरियो है। ओवरऑल अगर गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा बोले, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कि आपका हर महीने का 870 यूरो का खर्चा होगा। दैट इज व्हाई दे आल्सो वांट टू सी प्रूफ ऑफ फंड्स कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, 870 यूरो पर मंथ फॉर एन एंटायर ईयर, विच इज समवेयर अराउंड 10 लाख रुपए। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए फॉर देम टू सी कि हाँ आप 1 साल तो डेनमार्क में गुजार सकते हो विदाउट इवन मेकिंग मनी इन डेनमार्क, बट विच यू वुड आइडियली वर्किंग पार्ट टाइम। सो ओवरऑल दैट वाज द वीडियो अबाउट डेनमार्क। अगर आप डेनमार्क कंसिडर कर रहे हो तो आयरलैंड या नेदरलैंड्स भी कंसिडर करना चाहिए। आयरलैंड का वीडियो ये है, नेदरलैंड्स का वीडियो ये है। डेनमार्क के लिए कमेंट करो या फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वो फिल करो एंड यू वुड नो। अगर आयरलैंड का वीडियो देखना चाहते हो वो ये है, नेदरलैंड्स का ये है, एंड डेनमार्क के लिए यू कैन फिल द फॉर्म।